ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآدون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق ومعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين المظلومين الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين. أما بعد، فقد قالت المخدومة عليها السلام: فرض الله طاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا من الفرقة. بر محمد وآل محمد صلوات. مجلس مخدوم کونین مادر حسنین سید بطول دختر رسول جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی یاد کی مجلس ہے، اور بی بی کی شہادت کی مناسبت سے آپ بزرگان کی خدمت میں، برادران و عزیزان کی خدمت میں، امام عصر کی خدمت میں اس مجلس کی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کریم اللہ جب ہم ان کے نام پہ جمع ہوتے ہیں تو انہی کے نام کے ساتھ ہمیں محشور فرمائے، اور ہماری زندگیاں بھی ان کے نام اور ان کے فرمان کے مطابق بسر ہوں۔ جن احباب نے، جن مومنین نے اس سلسلے کا اہتمام کیا ہے، خصوصیت کے ساتھ اس مرکز کو جنہوں نے بنیادیں رکھی ہیں اور یہاں تک پہنچایا ہے، ہمارے درمیان موجود ہیں، تو پروردگار صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے۔ جو احباب بالخصوص جناب قبلہ مولانا صاحب اس سنٹر کی آبادی کے لیے رات دن مصروف عمل ہیں، پروردگار ان احباب کی ان کوششوں کو قبول فرمائے، اور ہمارے یہ مرکز اور ترقی کرتے رہیں اور تعلیم و تربیت کا ہمیشہ بہترین مرکز رہیں۔ خصوصیت کے ساتھ التماس کی گئی ہے کچھ مومنین کے طلب مغفرت کے لیے۔ دعا ہے پروردگار تمام مرحومین کو اپنے مغفرت سے سرفراز فرمائے، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے، بالخصوص مرحومہ کنیز طاہرہ، مرحومہ رباب
अब्दुल मोलो और मरहूम मुर्तज़ा हुसैन वज़ीर। तमाम मोमिनीन मरहूमीन के लिए, शुहदाए मिल्लत जाफरिया के लिए यहीं एक दफ़ा सूरह मुबारक फ़ातिहा की तिलावत कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलवात पढ़ लीजिए मुहम्मद व आले मुहम्मद। जनाब सैयदा के फदक के खुतबे के दो जुमले आप हजरात के सामने पेश किए हैं। जनाब सैयदा का एक तफसीली खुतबा जो जनाब पैगम्बर अकरम की रहलत के बाद तकरीबन 10वें या 11वें दिन जनाब सैयदा ने बयान फरमाया है, और जब फदक लेने जनाब सैयदा मस्जिद में पहुंची हैं तो वहाँ बीबी की एक तफसीली गुफ्तगू है जिसको खुतबा फदक कहा जाता है। उस खुतबे के दो जुमले मैंने आप हजरात के सामने पेश किए हैं। बीबी फरमाती हैं कि फ़रज़ल्लाहु ताअतना निज़ामन लिल मिल्लह, अल्लाह की ज़ात ने हमारी इताअत को फ़र्ज करार दिया है ताकि मिल्लत में, उम्मत में, कौम में नज़्म व ज़ब्त रहे। व इमामतना अमानन मिनल फुरका, और अल्लाह की ज़ात ने हमारी इमामत को फ़र्ज करार दिया है ताकि उम्मत तफरकाबाजी से महफूज रहे। ये दो जुमले मैं थोड़ी सी वजाहत इनकी करना चाहता हूँ। बाज़ तारीखी हवालों से अगर आप इस खुतबे को देखें तो लफ्ज़ फ़ारज़ा की जगह पे है जअलल्लाहु ताअतना, और बहुत सारी किताबों में है फ़रज़ल्लाहु ताअतना। अल्लाह ने हमारी इताअत फ़र्ज करार दी है, या अल्लाह ने हमारी इताअत को बनाया है किसके लिए? निज़ाम मिल्लत के लिए। पहले तो मैं ये अर्ज कर दूं कि यूथ, एक गुड नंबर्स ऑफ यूथ वी हैव हियर। सो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैव टू sermons. One which sermon she delivered in front of Ashab, it was in Masjid Nabawi, and this was the first sermon of Janab Zahra Maradiyah Salamullah Alaiha। और मैं इसको इस निगाह से देखता हूँ, और बुजुर्ग उलमा इस मौजू पे फरमाते हैं कि कुल शरीयत का खुलासा जनाब सैयदा ने इस खुतबे में बयान फरमा दिया है। और अगर कोई इस खुतबे को देखे तो उसको वो फसाहत बयान मुस्तफ़वी भी नज़र आएगी, और उलूम इलाहिया की झलक भी इस खुतबे में आपको नज़र आएगी। मैं कभी कभी याद किया करता हूँ कि जनाब अमीरुल मोमिनीन के नहजुल बलागा में जो खुतबे सैयद रज़ी ने जमा किए हैं वो 238 खुतबात हैं, लेकिन अगर 238 खुतबात जनाब अमीरुल मोमिनीन के हैं, और उस्ताद मोहतरम आयतुल्लाह उज़्मा ये फाज़िल लनकरानी, उनकी बरसी भी है, 11वां बरसी, चले इसी बहाने उनकी याद भी ताज़ा हो जाए। वो फरमाया करते थे अगर किसी ने अली को पहचानना है तो अमीरुल मोमिनीन की पहचान का बेहतरीन ज़रिया आपका कलाम है, इसलिए कि कलाम के ज़रिए से, गुफ्तगू के ज़रिए से किसी को पहचाना जा सकता है कि वो कौन है। तो मरहूम फरमाया करते थे कि नहजुल बलागा जनाब अमीरुल मोमिनीन की पहचान का बेहतरीन ज़रिया है। तो मैं इसमें इजाफा यार करना चाहता हूँ कि अगर किसी ने जनाब ज़हरा मरज़िया के अज़मत व मकाम इल्मी को और रब से ताल्लुक़ को पहचानना चाहता है तो ये खुतबा बेहतरीन ज़रिया है। और इस खुतबे में अगर आप देखें तो ताज्जुब होता है, यानी जनाब सैयदा ने कोई 7 या 8 जुमलात तौहीद के बयान फरमाए,
फिर रिसालत के बयान फरमाए, और तकरीबन 20 के करीब कलिमात जनाब सैयदा ने कुरान की अजमत के बारे में बयान फरमाए। और ये 22 जुमलात जनाब सैयदा ने फिर अहकाम इलाहिया के फलसफे को बयान किया है। रब ने नमाज क्यों लाजिम करार दी है, रोज़ा क्यों लाजिम करार दिया है, उसमें भी फरमाती है कि रब ने हमारी इताअत को क्यों लाजिम करार दिया है। ये एक खुतबा है जनाब सैयदा का, जो खुतबा फदकिया के उन्वान से मशहूर है। और फिर मीरास की बात जब आती है तो जनाब सैयदा ने वहाँ मीरास की आयतें इसी खुतबे के ज़ेमन में तिलावत की। एक खुतबा है जो इससे मुख्तसर खुतबा है, वो जनाब सैयदा ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में बयान किया है। यानी ये खुतबा अगर जनाब सैयदा का बाबा की रहलत के 10वें दिन बाद है या 11वें दिन है, तो वो तकरीबन बीबी के अगर 95 दिन की जिंदगी है तो वो यानी बीबी के आखिरी 10-12 दिनों का खुतबा है। और वो खुतबा कब बीबी ने इरशाद फरमाया, जब मुहाजिरीन और अंसार की खवातीन जनाब सैयदा की बीमार पुरसी के लिए बीबी के घर आती हैं और घर आके बीबी को बीमार पुरसी करती हैं, तो जनाब सैयदा के सामने बैठ के वो ये कहती हैं कि बीबी आपकी हालत क्या है, आप कैसे हैं। तो जनाब सैयदा ने उस हालत को बयान किया है। और वहाँ उस खुतबे में अगर मुताब मुताला हजरात जो हैं वो देखिएगा, उस खुतबे का ज्यादा मौजू जनाब अमीरुल मोमिनीन की अजमत का बयान है। और बीबी ने वहाँ वक्त हुआ तो इंशाल्लाह चंद जुमलात अर्ज करूंगा उस दूसरे खुतबे में। जनाब सैयदा मसन शुरू करते हैं कि किस लिए ज़हज़हूहा अन रवासियर रिसालत व कवाइदन नबुव्वा, क्या मुसीबत आपको पड़ी थी कि आपने रिसालत की चोटियों को और नबुव्वत की बुनियादों को मजबूत करने वाले अबुल हसन को आपने उस मकाम से हटा दिया है। अजब अंदाज है जनाब सैयदा का। रवासी रिसालत व कवाइद नबुव्वा, ये दूसरा जो खुतबा, क्या वजह है। और बाज ने बड़ा अच्छा तर्जमा किया है उर्दू का कि क्यों हड़प कर गए हो आप जनाब अमीरुल मोमिनीन की उस खिलाफत रिसालत को, जो कि वो खिलाफत रिसालत की चोटियों को मजबूत करने और नबुव्वत की बुनियादों को मुस्तहकम करने का जरिया थी। अब यहां से जनाब सैयदा ने खुद खिलाफत का मकाम बतला दिया है कि रसालत और नबुव्वत और खिलाफत अमीरुल मोमिनीन का आपस में ताल्लुक क्या था। सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। So these very important treasure we have from Janabe Zahra Maradiya, and I will request to youth that in these days it is good that you are attending Alhamdulillah different majalises and you are practicing your nohas and marsiyas and these things. This is a very good, but what we have from Janabe Zahra Maradiya Salamullah Alayha from herself, these are two sermons. And we must, I will say, especially to women and girls, that our great scholars, they were used to memorize for their children, especially for girls, to advise them that memorize these two sermons of Janabe Zahra Maradiya. तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप कम अज कम एक दफ़ा बैठ के शुरू से आखिर तक इन दो खुतबों को पढ़ लें। और अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश एंड वेरी गुड इंग्लिश ट्रांसलेशन वी हैव ऑनलाइन, तो आप वहां जा सकते हैं और उसमें इन खुतबात को देख सकते हैं। सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब खुतबे का एक जुमला जो है वो जनाब सैयदा ने ये फरमाया, फ़रज़ल्लाह ताअतना। इस लफ्ज़ के अंदर खुद मालूम होता है कि जनाब सैयदा अपना मकाम जो इंदल्लाह बीबी का मकाम है वो वाज़े फरमा रही हैं। देखिए, इताअत की जब बहस आती है तो हम इताअत में उलुल अम्र के लफ्ज़ को सामने रख के ये कहते हैं कि जैसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत लाजिम है, इसी तरीके पे उलुल अम्र की इताअत लाजिम है। जनाब सैयदा ने यहाँ, और एक इल्मी नुक्ता है कि जनाब सैयदा ने यहाँ फरमाया है ताअतना, रब करीम ने हमारी इताअत को फर्ज करार दिया है। ये इताअत फर्ज कहाँ करार दी गई है? ये आए इताअत कुरान मजीद में मौजूद है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम।
अल्लाह की इताअत, अल्लाह के रसूल की इताअत, उलिल अम्र की इताअत। तो गोया जनाब सैयदा ये वाज़े कर रही हैं कि जहां अमीरुल मोमिनीन से लेके 12वें इमाम तक ये साहिबान उलिल अम्र हैं और इनकी इताअत वाजिब है, जैसे उनकी इताअत वाजिब है इसी तरीके पे जनाब ज़हरा मरज़िया की इताअत भी वाजिब है। अब ये ताअतना, और फिर यहीं से ये वाज़े हो जाता है कि जनाब सैयदा का इस उम्मत की फहरिस्त में मकाम क्या है। और दूसरी चीज़ जो जनाब सैयदा ने ये वाज़े फरमा दी है कि देखो हमारा एक हक हम इस जुमले में बयान फरमा रहे हैं, और वो हक क्या है कि ये अल्लाह है जिसने हमारी इताअत को लाजिम करार दिया है। यानी हम वो हैं कि जिनकी इताअत अल्लाह की तरफ से वाजिब है। और फिर इस इताअत का फलसफा भी जनाब सैयदा ने बयान किया है। फलसफा क्या है अजीजन, कभी कभी अगर हमें चेक करना हो कि आया हम जो कुछ पढ़ रहे हैं, जो कुछ सीख रहे हैं, वो किस हद तक सीखा है, तो उसका एक टेस्ट करने का जरिया यह होता है कि हम उसका रिजल्ट देखें। हम मसलन चेक करते हैं, फर्ज कीजिए पानी गर्म किया, अब थोड़ी देर बाद हमने जो मसलन केटल या कुछ जो है वो ऑन की, थोड़ी देर बाद हमारे हाथ के टच करने के जरिए से महसूस होना चाहिए कि उसमें गर्मी है। अब उस गर्मी के एहसास से आपको दो चीजें मालूम हो जाएंगी, एक तो यह है कि वो इलेक्ट्रिक काम कर रही है, और दूसरा यह है कि जिस मकसद के लिए आपने उसको ऑन किया था वो मकसद आपका हासिल हो गया। अब यहां जनाब सैयदा फरमाती हैं रब ने हमारी इताअत को लाजिम करार दिया है, हम इसको टेस्ट करते हैं कि आया हम इताअत करते हैं या नहीं, और फिर यह है कि हमारी इताअत का मेयार क्या है, आया हम कहां खड़े हैं इताअत मोहम्मद वाले मोहम्मद में। कैसे टेस्ट करेंगे? हमारे यहां तो ये आजकल जो है वो आम है, दोनों हाथ खड़े करके नारा लगाओ, हाँ ये टेस्ट हो जाता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहीं, टेस्ट का सिलसिला क्या है, खुद जनाब सैयदा की मशहूर हदीस, जनाब सैयदा के पास एक शख्स ने अपनी ज़ौजा को भेजा, मोहतरमा जाओ और बीबी से पूछ के आओ हम आपके शिया हैं या नहीं। जनाब सैयदा अब कह दें शिया हैं तो मसला तो हल। वो साहब आए, अपनी ज़ौजा की मिन्नत की और उनको ये कहा कि जाओ बीबी से पूछ के आओ। वो खातून बीबी के पास आई, बीबी हमारी ज़ौजा पूछती हैं हम आपके शिया हैं या नहीं। अब आप ज़रा एक लहजे के लिए जवाब सोचिए, बीबी का जवाब क्या होगा। वो इतनी मिन्नत करके अपनी ज़ौजा की और ज़ौजा को बीबी के पास भेज रहे हैं और दावा ये है कि हम शिया हैं, सवाल करने आए हैं, बीबी हम आपके शिया हैं या नहीं। अब बीबी को क्या जवाब देना चाहिए? सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, बीबी ने कंडीशनल जवाब दिया। बीबी फरमाती हैं कि अगर आप हमारे हुक्म को मानते हो और जिससे हम रोकते हैं उससे आप रुकते हो तो अंतुम लना शिया व इल्ला फला, आप हमारे शिया हैं वरना नहीं। अब मैं पलट के आता हूँ कि बीबी ने जो ये कहा है कि अल्लाह ने हमारी इताअत को फ़र्ज करार दिया है, तो हमें देखना है कि हमारी इताअत कहाँ है। इताअत अगर हमने देखनी है तो हम कहाँ जाके देखेंगे कि हम आले मोहम्मद की इताअत कितनी कर रहे हैं। उस इताअत के लिए ही पैगंबर भी फरमा गए और रब ने भी ऐलान किया है। पैगंबर का मशहूर फरमान हदीस सकलैन, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं आपके दरमियान दो ग्रां बहा और दो बड़ी वजनी और हम कीमत चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक मेरी अहले बैत है और एक अल्लाह की किताब है। मकसद क्या हुआ? जो कुरान का हुक्म है वो इनका हुक्म है और जो कुरान की नहीं है वो इनकी नहीं है। अगर देखना है कि जनाब सैयदा ने क्या फरमाया है तो किसी इधर उधर के मौलवी जाकिर से, शायर से पूछने के बजाय जाके पूछेंगे कहाँ से? अल्लाह की किताब से पूछेंगे। अल्लाह की किताब तेरा क्या हुक्म है? इसलिए कि जो तेरा हुक्म है वो ही ज़हरा मरज़िया का हुक्म है। अल्लाह की किताब तूने किस चीज़ से मना किया है, जिससे तूने मना किया है उसी से ज़हरा मरज़िया ने मना किया है। और ये जुमला खुद बतलाता है, बीबी ने बगैर किसी कंडीशन के फरमाया फ़रज़ल्लाहु तआला, अल्लाह ने हमारी इताअत को फ़र्ज करार दिया है। और ये ज़रा अकीदे
का एक बारीक जुमला है अजीजान, तवज्जो फरमाइएगा। अगर कहीं बगैर किसी कंडीशन के किसी की इताअत का हुक्म हो तो वो मासूम होता है। जरा इसको देखिए, हम उलुल अम्र की इस्मत के कायल क्यों हैं, और शिया नजरिया क्या है कि उलुल अम्र हर कोई नहीं हो सकता जो हुकूमत के और तख्त पे बैठ जाए, वो उलुल अम्र नहीं होता। क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ बगैर किसी कंडीशन के इताअत है, लिहाजा जरूरी यह है कि उलुल अम्र मासूम होना चाहिए। कहीं उसकी जिंदगी में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मुखालिफत नहीं होनी चाहिए। बीबी फरमाती है अल्लाह ने हमारी इताअत को फर्ज करार दिया है। गोया बीबी ये ऐलान भी कर रहे हैं कि एक तो इताअत हमारी ये हो सकती है, अगर कोई किसी और की इताअत करता है तो वो फर्ज इलाही से दूर जा रहा है, और दूसरा यह है कि बीबी गोया ये ऐलान कर रही है कि अगर हमारी इताअत रब ने फर्ज की है तो हमारी इस्मत की गवाही हो गई है। सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। फरज़ल्लाहु तआला। अब मैं जो टेस्ट कर रहा था, उस टेस्ट को हम कैसे करें कि इताअत करते हैं या नहीं। अब इताअत का टेस्ट करने के लिए हमें अपनी जिंदगी को देखना होगा, और खुसूसियत के साथ इस जुमले में जनाब सैयदा फरमाती हैं हमारी इताअत को रब ने फर्ज करार दिया है ताकि उम्मत में नज़्म ज़ब्त रहे। लिहाजा हमें अपनी कम्युनिटी को, अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को, अपने आप को देखना है, आया हमारे अंदर नज़्म ज़ब्त मौजूद है या नहीं। अगर नज़्म ज़ब्त मौजूद है तो गोया हम इताअत कर रहे हैं, और अगर हमारी हर किस्म की जिंदगी बिखरी हुई है तो मालूम ये होगा कि हमारी इताअत फिर नहीं है। सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और अगला जुमला तो इससे भी सख्त है। हाँ, वो क्या है, फरज़ल्लाहु तआला यहाँ हुआ, और फरज़ल्लाहु इमामतना, अल्लाह की जात ने हमारी इमामत को क्यों फर्ज करार दिया है, अमानन मिनल फुरका, ताकि उम्मत तफरके से महफूज रहे। अब देखना यह है कि हम इनकी इमामत के तहत हैं या नहीं। वो जो अल्लाह ने बीबी के फरमान के मुताबिक इताअत फर्ज करार दी है वो नज़्म ज़ब्त में नजर आएगी, और उनकी इमामत को हम किस हद तक मानते हैं। बड़ा सख्त जुमला है अजीजन। अगर हम दावा करते हैं कि हम आले मोहम्मद के गुलाम हैं, वो हमारे इमाम हैं, तो बीबी ने एक तराजू बना दिया है। देखो अपने आप को इससे परख लो, अपने आप को इससे जांच लो। जैसे मैंने पानी की मिसाल दी थी, जरा उंगली से टेस्ट करो क्या बिजली ने अपना काम दिखाया है या नहीं। अगर इमामत आले मोहम्मद का काम देखना है तो अपनी कौम में जाके देखो कि हमारी कौम में तफरका तो नहीं है। अगर तफरका है कौम में तो फिर इमामत नहीं है, अगर इमामत है तो फिर तफरका नहीं है। और ये कौम में तो इंशाल्लाह हम बड़ा जल्दी फैसला कर लेते हैं। हमारी कौम में ये फैसला हम कैसे करते हैं, इमामत न अमानन मिलल फुरका, कहते हैं मैं तो बड़ा इनकी इमामत मानने वाला हूं, तो फरका वो डाल रहा है। हाँ, सारा जो है वो उसका कसूर है। हम एक तो ये है कि हम ये फिरका परस्ती अपनी जगह पे अलग, यानी हम आपस में इख्तिलाफात, एक ये नहीं है कि फकत हम ये नहीं मानते कि इख्तिलाफात हैं, नहीं, इख्तिलाफात मान के फिर दूसरे पे डालेंगे, नहीं, इख्तिलाफ मेरी वजह से है, उसकी वजह से है, और ये फिर इख्तिलाफात में और आगे सिलसिला बढ़ जाता है। यानी हम इख्तिलाफात का बानी कभी अपने आप को नहीं मानेंगे, बल्कि कहेंगे इख्तिलाफ का सबब दूसरा है। नहीं अजीजान, ये कौम में भी देखना है और ये हमने अपनी जिंदगियों में भी देखना है। हमारी घरेलू जिंदगी में तो कहीं इख्तिलाफ नहीं है। इमामतना अमानन मिनल फुरका, बीबी फरमाते हैं कि अल्लाह की जात ने हमारी इमामत को फर्ज करार दिया है ताकि इख्तिलाफात से महफूज रहें। एक इख्तिलाफ तो वो है जो बीबी की मौजूदगी में, बीबी की जिंदगी में मदीने में कायम हो चुका था, और दो ग्रोह बन चुके थे। एक तो वो इख्तिलाफ आले मोहम्मद की इमामत को नहीं माना, लेकिन एक चीज हमें देखनी है कि हमारे घरों में क्या सूरत हाल है। मैं भी कहता हूं कि मैं भी इनकी इमामत का कायल, मेरे बच्चे भी इनकी इमामत के कायल, मेरी जौजा भी इनके इमामत के कायल,
तो घर में तो कम अज कम घर जो है वो एक गुलदस्ते की तरह होने चाहिए, जो सब फूल मिल के खुशबू में इजाफा करें। कहीं ऐसे तो नहीं है कि घर में भी बच्चे का मुंह उधर, बच्ची का उधर, बीवी का उधर, शौहर का उधर। इंशाल्लाह शेफील्ड में तो नहीं होगा, सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले। हाँ, इसलिए कि सारे जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब सैयदा के मानने वाले हैं, और जनाब सैयदा के मानने वालों में मैं एक बाज़ जगह पे जो है वो जनाब सैयदा की इज़्दिवाजी ज़िंदगी, मैं अभी वक्त नहीं है कि उस तरफ जाऊं भी, जनाब सैयदा की ज़िंदगी के तीन पहलू बड़े प्यारे अंदाज से अल्लामा इकबाल ने बयान किए हैं। और एक बड़ी तफसीली नज़म है फ़ारसी में अल्लामा इकबाल की, जो शुरू ये होती है, मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज़, अजहर से निस्बत हजरत जहरा अजीज। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि जनाब मरियम एक निस्बत है उनकी, और उस निस्बत से इतनी अजीम हो गई हैं कि वो ताहिरा, मुतहरा और सफ़िया बन गई हैं। वो क्या है अल्लामा इकबाल के बकौल, मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज। और मैं इसको समझता हूँ कि ये हकीकत में हदीस किसा का बड़ा प्यारा तर्जमा है। रब करीम ने हदीस किसा में जो तारुफ कराया ना इस घराने का, होम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा, यानी इस सैयदा को लेके जब परवरदिगार ने तीन रिश्तों के दरमियान इस मस्तूर को, इस खातून को, इस मुकद्दसा को रख दिया। गोया जनाब परवरदिगार की तरफ से ये ऐलान हो रहा है कि घर में अगर चक्की के उस कील का किरदार अदा कर सकती है, तो उम्मत में कील का किरदार नहजुल बलागा के मुताबिक अली अदा कर रहे हैं, और घर के अंदर वो एक खातून फातिमा ज़हरा अदा कर रही है। इमामत जनाब अमीरुल मोमिनीन अगर देखे तो नहजुल बलागा में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम दो जगह पे फरमाते हैं, अना कुतुबुर रिहा, मैं चक्की के उस ऊपर घूमने वाले हिस्से के दरमियान में जो लोहे के कील होती है, जिसके इर्द गिर्द वो चक्की घूमती है, मैं अली वो कील हूं। लेकिन रब ने जो तारुफ कराया है, हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा, किसी औरत की जिंदगी या बेटी की सूरत में होती है, या जोजा की सूरत में होती है, या मां की सूरत में होती है। रब करीम फरमाते हैं अगर इन सारे रिश्तों में उस कील के मकाम को देखना है तो वो ज़हरा मरज़िया है। अब इसको हम अगर अपने घरों के माहौल को हम संवारना चाहते हैं और उस इख्तिलाफात को घरों से दूर रखना चाहते हैं, तो उस खातून को कनीज़ जनाब ज़हरा बन के किरदार ज़ैनबी और किरदार फातिमी अदा करना पड़ेगा, तो घरों के इख्तिलाफात भी मिटेंगे। और अगर मर्द और औरत सब मिलके शिया के उन्वान से इस किरदार को अदा करेंगे तो फिर कौम के इख्तिलाफ मिटेंगे। जनाब सैयदा की ज़िंदगी का एक खुलासा, ये लफ्ज़ इताअत ज़हन में रहे। फ़रज़ल्लाहु ताअतना, अल्लाह की ज़ात ने हमारी इताअत फ़र्ज़ करार दी है। जनाब पैगम्बर अकरम की ज़िंदगी के ज़ाहिरन आखिरी अय्याम हैं। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम और जनाब सैयदा सामने तशरीफ़ फरमा हैं। जनाब पैगम्बर अकरम ने जनाब अमीर की फजीलतें बयान करना शुरू की। काफ़ी सारे फ़ज़ाइल जनाब सैयदा के सामने बयान किए, और फ़ज़ाइल बयान करने के बाद जनाब अमीर से एक सवाल किया पैगम्बर अकरम ने, या अली, मेरी बेटी को कैसी ज़ौजा पाया है? ज़रा देखिए, मैंने जैसे अर्ज़ किया है कि तीन मेयार हैं, तीन महवर हैं, एक खातून और बिलखुसूस जनाब सैयदा जनाब परवरदिगार ने हदीस किसा में महवर करार दिया है, तो अल्लामा इकबाल ने भी वही सिलसिला तीनों रिश्तों को, और ये पढ़ने की नज़म है अजीज़न, वाकई एक इल्मी पॉइंट है। अल्लामा इकबाल ने कहा, मरियम अज़ एक निस्बत ईसा अजीज़, हज़रत ज़हरा अज़हर से निस्बत अजीज़, और फिर चार निस्बतें बयान की हैं। और पहली निस्बत बयान की है कि बेटी हैं उस रहमतुल लिल आलमीन की। और फिर ज़ौजा के हवाले से अल्लामा इकबाल कहते हैं कि बानुए सरताज हल अता के सरताज अली इब्न अबी तालिब की ज़ौजा हैं। और जब माँ के हवाले से आते हैं तो
कारवां सालार इश्क, यानी जनाब सैयद शुहदा जो सालार इश्क, कारवान इश्क के सालार हैं, उसकी माँ हैं। और फिर जनाब हसन मुज्तबा के हवाले से एक सुन्नी मौलवी हैं, उनकी ये वीडियो मौजूद है यूट्यूब पे, मौलाना इसहाक, उन्होंने जनाब इमाम हसन की अजमत बयान की है। और वो कहते हैं, मैंने खुद सुना है उनको, वो कहते हैं कि जिस अंदाज से जनाब इमाम हसन मुज्तबा की अजमत और जनाब इमाम हसन मुज्तबा के मुखालिफीन की हैसियत जनाब अल्लामा इकबाल ने बतलाई है, वो ऐसी किसी और ने नहीं बतलाई। वो क्या है कि जनाब इमाम हसन मुज्तबा बेटा है ज़हरा का। कौन सा बेटा है? जिसने अपने सारे ओहदे इसलिए कुर्बान कर दी है ताकि आतिश जंग से उम्मत मुस्तफा महफूज रहे। अब ये है जनाब सैयदा की औलाद का तारुफ, ये उनकी तो ये जनाब सैयदा का तारुफ माँ के हवाले से, ज़ौजा के हवाले से, बेटी के हवाले से। और ये चीज़ें हैं, एक बड़ी अच्छी किताब है आयतुल्लाह इब्राहिम अमीनी ने लिखी है, उसका उर्दू तर्जमा भी मैंने देखा है, इंग्लिश मुझे याद नहीं है या नहीं। इस्लाम की मिसाली खातून। अब इस्लाम की मिसाली खातून ये फकत 3 पहलू हैं, और वो 3 पहलू माँ, बेटी और ज़ौजा। लेकिन उन्होंने एक तफसील लिखी है, इस्लाम की मिसाली खातून फकत इन रिश्तों के हवाले से नहीं होती। इस्लाम की मिसाली खातून है कि अगर बाप पे मुश्किल आती है तो वो उम्मु अबी हा बन के रसूलुल्लाह जैसे बाप की तीमारदारी भी करती है और तरफदारी भी करती है, जख्म धोती भी है और उस विलायत की हिफाजत भी करती है। और जब बाप के बाद शौहर की बारी आती है तो पैगंबर अकरम पूछते हैं, या अली कैफ वजदत इब्नती फातिमा, मेरी बेटी ज़हरा को, फातिमा को आपने कैसी ज़ौजा पाया? ज़रा ख़वातीन इस पे तवज्जो फरमाएं, आप जवाब देना है अली को अपनी ज़ौजा के तारुफ के लिए, और वो भी पैगंबर फरमा रहे हैं कैफ वजदत, आपने कैसे पाया है इनको ज़ौजा। एक जुमले में मैं इसको समझता हूँ, और आजकल मैं बार बार इसको दोहरा रहा हूँ, एक जुमले में जनाब ज़हरा मरविया की इज़्दिवाजी ज़िंदगी का खुलासा जनाब अमीरुल मोमिनीन ने बयान कर दिया है। और वो क्या है? जनाब अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, आपकी बेटी निअमल औन अला ताअतिल्लाह, अल्लाह की इताअत में अली के बेहतरीन मददगार का नाम फातिमा है। निअमल औन अला ताअतिल्लाह, अल्लाह की इताअत में बेहतरीन मददगार किसका? वो अली जो फरमाते हैं, परवरदिगार मैं न तेरी जन्नत की लालच में इबादत करता हूँ, न जहन्नम के खौफ की वजह से इबादत करता हूँ। अब उस अली को भी मददगार की ज़रूरत है या नहीं? ये जुमला ये बतलाता है कि अली फरमा रहे हैं मददगार की इताअत खुदा में मदद के लिए अली को भी ज़रूरत है। और अली को किसकी ज़रूरत है? फातिमतुज़ ज़हरा की। और ज़ौजा वो है हकीकत में जो इताअत खुदा में अली जैसे इमाम की मददगार बन के ये बतलाती है कि अगर ज़ौजा शौहर की, और वो भी फातिमतुज़ ज़हरा जैसी ज़ौजा, अली मुर्तज़ा जैसे इमाम की मददगार बन जाएगी तो उनकी इताअत कहां पहुंचेगी? लिहाजा देखना यह है, हमने अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी को इस निगाह से देखना है कि क्या मियाँ इताअत खुदा में अपनी ज़ौजा के मददगार हैं या नहीं। हमारी अजीज़ान कमजोरी क्या होती है? हम पैसा इकट्ठा करने में, घर को संवारने में, औलाद की तालीम देने में, सब चीज़ों में एक दूसरे के मददगार होने चाहिए, और ये फरीज़ा है एक दूसरे का इज़्ज़त व एहतराम के साथ। लेकिन हकीकत जो है वो ये है कि जब निकाह के वक्त हम ये कहते हैं कि अल्लाह की ज़ात ने इस निकाह को और इस रिश्ते को लाजिम करार दिया है, तो उसको निभाने के लिए ज़रूरी ये है कि जिसके हुक्म से मर्द औरत के लिए, औरत मर्द के लिए हलाल करार पाए हैं ज़िंदगी के हर मोड़ पे, उस हलाल करार देने वाले रब को भी याद रखना चाहिए, और यही इताअत परवरदिगार। और इसके लिए मैं अर्ज करूंगा, आले मोहम्मद की सबसे बड़ी फजीलत ही यही है कि आले मोहम्मद ने इताअत खुदा का हमारे लिए राह वाज़ेह और रोशन किया।
शेख सदूक की एक किताब है एतिकादी है, शेख सदूक उर्दू में भी मौजूद है, उसको देखिएगा। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो ज़रा कोशिश किया कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास आलिम दीन मौजूद हैं, और उलमा से कुछ सीखने का तरीका यही होता है। ये नहीं होता कि मौलाना जो है वो क्लास मुरतब करें, और जब क्लास का टाइम हो तो मौलाना ही दरवाज़ा खोलें, मौलाना ही हीटिंग ऑन करें, और फिर मौलाना ही बैठें, और बाज़ औक़ात जो है वो बैठे बैठे फिर अकेले ही। और अलबत्ता मैं मौलाना उलमाए कराम को, अपने जैसे तलबा को याद करता रहता हूँ कि तालिब इल्म जो तालिब इल्म है हकीकी, वो कभी अपने आप को अकेला महसूस ही नहीं करता। इसलिए कि मुझसे अगर कोई पूछता है कि मौलाना आप अकेले हैं, मैंने कहा नहीं, मैं अकेला तो नहीं है, मेरे पास तो अली हैं। इसलिए कि मेरे पास जब नहजुल बलागा जैसा कलाम अली मौजूद होगा तो अकेलापन कैसा? ये हम अकेलापन, अगर तालिब इल्म है तो वो अकेलापन नहीं, इसलिए कि हमारी जिंदगी आंख खुलती है तो काल सादिको काल अल बाकिरो काल रसूलुल्लाह काल अल्लाह। अगर हमारे साथ ये कौल मासूमीन है तो अकेलापन मैंने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया। लेकिन ये कौम की इल्मी सोचों की पहचान होती है कि सारा कुछ मौलाना करें और कभी आए और मौलाना बैठे हों और कौम मसरूफ हो। हाँ, फिर भी हम हैं बड़े पक्के शिया। सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले। लिहाजा आज ये कर रहा था कि इन चीज़ों को उलमाए कराम के पास जाके बैठिए। मिसाल इस्लाम की मिसाली खातून, घर में अगर मुश्किल आती है तो जाके ज़हरा मर्ज़िया और अली मुर्तज़ा की जिंदगियों को देखिए कि उस मुश्किल में एक दूसरे का साथ कैसे देते हैं, बच्चों की तरबियत में कैसे साथ देते हैं। सारे फहरिस्त और इसको बात को जमा कर लूँ। जनाब इमाम फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, निअमल औन अला ताअतिल्लाह, अली की बेहतरीन मददगार ये ज़ौजा है, ये फातिमतुज़ ज़हरा है। और शेख सदूक ने ये कहा है कि इनका सबसे बड़ा कमाल यही है, अगर कोई अपनी जिंदगी को संवारना चाहता है तो वो देखे कि हम आले मोहम्मद को क्या समझते हैं। एतिकादी है शेख सदूक में, शेख सदूक फरमाते हैं हर शिया के लिए लाजिम है कि उसका यह अकीदा हो, ताअतुहुम ताअतुल्लाह व मासियतुहुम मासियतुल्लाह, वलियुहुम वलियुल्लाह व अदुव्वुहुम अदुव्वुल्लाह, अमरुहुम अमरुल्लाह व नहयुहुम नहयुल्लाह। ये तीन जुमले याद रखिए। शेख सदूक फरमाते हैं इनकी इताअत अल्लाह की इताअत है, इनकी मासियत अल्लाह की मासियत है, इनका अम्र हुक्म अल्लाह का हुक्म है, इनकी नहीं अल्लाह की नहीं और अल्लाह के तरफ से रुकावट है, इनका वली अल्लाह का वली है और इनका दुश्मन अल्लाह का दुश्मन है। लिहाजा हमें इस निगाह से अकीदा आले मोहम्मद के बारे में क्या होना चाहिए, हम आले मोहम्मद को क्या मानते हैं। शेख सदूक इससे पहले एक जुमला फरमाते हैं, हमें मानना चाहिए और हर मोमिन का यकीदा होना चाहिए कि इन्नहुम उलुल अम्रिल्लज़ीन फरज़ल्लाहु ताअतहुम, यह वाजिब है इनकी इताअत, ये हमारा अकीदा होना चाहिए। और अल्लामा शेख सदूक ने एक जुमला लिखा है, जरा गौर फरमाइएगा, और इस जुमले को अपनी जात के साथ मंसूब करके नहजुल बलागा में जनाब अमीर ने बयान फरमाया है। वो जुमला क्या है, शुहदाओ अलल मुअमिनीन यौमल क़ियामा, ये हमारा अकीदा होना चाहिए कि आले मोहम्मद क़यामत के दिन हर मोमिन के लिए गवाह होंगे कि इसने क्या किया था क्या नहीं किया था। और फिर ये सिलसिला अकीदे का कि हमारा अकीदा आले मोहम्मद के बारे में क्या होना चाहिए। जब हम इन इताअतों को, इमामत की इन मराहिल को तय करेंगे तो हम कहलवाएंगे शिया। हाँ, फिर हम फ़कत आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल नहीं बयान करेंगे, फिर आले मोहम्मद आपके फ़ज़ाइल बयान करेंगे। छठे लाले विलायत का ये शेख तूसी ने अपनी अमाली में इस वाक़े को लिखा है, मजलिस नंबर 4 में, कि एक शख्स छठे लाले विलायत का सहाबी है और आके इमाम की खिदमत में अर्ज़ करते, मौला जब भी आपके पास बैठते हैं तो आप सलमान फ़ारसी की तारीफ़ें शुरू कर देते हैं। हाँ, यानी एक शिया के फ़ज़ाइल बयान करना शुरू कर देते हैं। मौला जब भी बैठते हैं, गम हो खुशी हो रात हो दिन हो, आपके साथ जिस महफिल में भी बैठते हैं सलमान फ़ारसी सलमान फ़ारसी। इमाम ने यही रोक दिया, उसने कहा नहीं, मंसूर उसका नाम है, मंसूर सलमान फ़ारसी न कहो, सलमान मुहम्मदी कहो। ये है जहाँ से हम कहते हैं सलमान
मोहम्मदी कहो। अच्छा मौला सलमान मोहम्मदी की तारीफ क्यों? का सलमान मोहम्मदी की तारीफ कुल 3 चीजों में खुलासा होती है। उस सलमान में 3 खुसूसियात थी, जिन खुसूसियात के वजह से मैं नहीं हमारी हर फर्द उसकी तारीफ और फजीलत बयान करती है। मौला वो क्या खुसूसियात थी? ईसार हवा हो अला हवा अमीर अल मोमिनीन, वो अपनी ख्वाहिशात को अमीर उल मोमिनीन की ख्वाहिशात पे कुर्बान कर देता था। पहली तारीफ सलमान फारसी की कि उसकी कोई अपनी ख्वाहिश होती नहीं थी, देखता था मेरी ख्वाहिश और अली की ख्वाहिश। अपनी ख्वाहिश को सलमान फारसी अली की ख्वाहिशों पे कुर्बान कर देता था। वक्त नहीं है कि मैं तफसील में जाऊं। शिया की एक निशानी जिस पे इमाम फिर शिया की फजीलत बयान करते हैं। दूसरी, इमाम फरमाते हैं कि हुब्बुल फुकरा, सलमान फारसी की दूसरी तारीफ ये थी कि वो फ़कीरों से मोहब्बत करते थे। और जुमला इमाम ने आगे इजाफा किया है, और मैं एक दफ़ा आयतुल्लाह सैयद अली खामनई का दर्स खारिज सुन रहा था, तो उन्होंने दर्स खारिज के आखिर में इस हदीस को मौजू बना के उसका 10-12 मिनट तफसील बयान की। जब इस दूसरे जुमले में पहुँचते हैं तो वो फरमा रहे थे कि दूसरी तारीफ जो सलमान फारसी की जनाब इमाम शिशुम ने बयान फरमाई है, हुब्बुल फुकरा, कि सलमान फारसी फ़कीरों को दोस्त रखते थे। अगला जुमला जो छठे इमाम का है वो ये है कि जब फ़कीर और अमीर का आपस में मुकाबला हो जाता था तो सलमान फारसी की खुसूसियत ये थी कि वो फ़कीरों को अमीरों पर तरजीह देते थे। हमनाई फरमा रहे थे मुश्किल तो ये है, हम भी चार, ये मेरे लफ्ज़ हैं, हम भी 4 पौंड जो है वो उसको रुपए में बदला के समझते हैं कि हम बड़े अमीर हो गए, और फिर हम चैरिटी करते हैं जनाब, और फ़कीर ढूंढते हैं और फिर सारी ज़िंदगी उन पर एहसान जितलाते हैं। ये मोहब्बत अगर हो तो दिल से भी मोहब्बत हो तो वो अलग बात है, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक तरफ फ़कीर हो, एक तरफ अमीर हो, बात दरमियान में आ जाए तो अब हम किसको तरजीह देते हैं? फ़कीर को तरजीह देते हैं या अमीर को तरजीह देते हैं? और अगर फ़कीर को छोड़ के अमीर को तरजीह दी जाती है तो अली को ये बात इतनी बुरी लगती है कि अपने प्यारे सहाबी को जब देखा कि उस्मान इब्न हुनैफ खात नंबर 45 नहजुल बलागा के मुताबिक जब कभी किसी ऐसी दावत में चले जाते हैं जिसमें फ़कीरों को दूर रखा गया था, अमीरों को दावत दी गई थी, तो नहजुल बलागा के खत 45 में वो झिड़कियां जनाब अमीर ने उस्मान इब्न हुनैफ को दी, जहां फरमाते हैं उस्मान आप कम अज कम मेरे चाहने वाले थे, अपने इमाम को तो देखा होता था। आप इमाम तो वो है कद इक्तफा मिन दुनिया कुम बितिमरई व मिन तुमी बिकुरसई, आपके इमाम ने तो आपकी भरी दुनिया से 2 पुराने लिबासों पे और 2 रोटियों के टुकड़ों पे गुजारा कर लिया है, कम अज कम देख तो लेते आप किस दावत में जा रहे हो। हाँ, अब ये नहीं, अगर फ़कीरों को छोड़ कर, वजह क्या थी? वजह ये थी कि वहाँ फ़कीरों को दूर रखा गया था, अमीरों को दावत दी गई थी। तो ये मुश्किल काम है, तब बनता है शिया। और तीसरी जो खुसूसियत जनाब सलमान फारसी की, हुब्बुल इल्म वल उलमा, छठे इमाम फरमाते हैं सलमान मोहम्मदी हमें इसलिए प्यारा लगता है और हम में से हर एक इमाम मासूम उसकी इसलिए तारीफ करते हैं कि उनको इल्म से और उलमा से मोहब्बत थी। सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसका भी इम्तिहान हमारे यहाँ होना चाहिए, इल्म और उलमा से मोहब्बत, तब बनता है सलमान मोहम्मदी। और फिर नौबत यहाँ तक आ जाती है कि ऐसे सलमान को ज़हरा मर्ज़िया भी चचा करके पुकारती है। चचा। शब दफन जनाब सैयदा जनाब अमीरुल मोमिनीन जनाब सलमान को बुला के कहते हैं, सलमान ज़हरा आपको चचा कहती थी, आओ ज़हरा के सिरहाने बैठ के कुरान की तिलावत करो। ये है मकाम। और जो तदफीन में जनाजा उठाने में जनाब सैयदा के जनाजा उठाने में जनाब अमीर के मददगार थे, उनमें सर फहरिस्त जनाब सलमान फारसी। अली
آخری راتوں میں زہرا مرضیہ کے سامنے جو آئے نا تو دیکھتے ہیں کہ بی بی بڑی تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے۔ علی نے سوال کیا، بی بی میری خاطر آپ کو بہت سارے دکھ جھیلنے پڑے، اتنی بے تابی سے کیوں روتی ہو؟ گریہ زہرا میں اضافہ ہوا، رو کے کہتے ہیں علی اپنے دکھوں اور دردوں کو نہیں روتی، روتی اس لیے ہوں میرے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ جب جناب امیر نے یہ جملے سنے تو علی نے بھی رونا شروع کیا۔ بی بی پوچھتے ہیں یا علی اب آپ کیوں روتے ہو؟ علی روتے ہیں اور فرماتے ہیں روتا اسی لیے ہوں کہ کہیں آپ کے بعد میری زندگی لمبی نہ ہو جائے، اس لیے کہ آپ کے بعد مجھے کتنا رونا ہے۔ عزیزو، جناب امیر علیہ السلام نے ایک مرثیہ پڑھا ہے جو نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 200 میں موجود ہے۔ جناب امیر المومنین کا یہ مرثیہ پڑھیے گا، کتنا درد تھا جناب امیر کو اس بی بی کے جانے کا، کہ جب دفن کر چکے نا تو قبر رسول کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ، اور پھر جملے ہیں جناب امیر کے کل ان صفیت کا صبری یا رسول اللہ، یا رسول اللہ علی نے تو بڑے بڑے دکھ اور درد سہے تھے، لیکن آپ کی بیٹی کے جانے کے بعد علی کے صبر ختم ہو گئے ہیں، اور علی کی ہمت نے جواب دے دیا ہے۔ اب وہ کون علی اور کس چیز پہ امیر کے صبر ختم ہو گئے؟ وہ زہرا مرضیہ کے دکھوں نے علی کے صبر ختم کر دیے۔ آخری اوقات ہیں، جناب سیدہ نے بلایا یا علی، جی بی بی، کہا یا علی میری کچھ وصیتیں ہیں۔ ہاں فرماؤ بی بی، اب وصیتیں سنیے جو ہر مقتل والے نے اور ہر تاریخ والے نے لکھا ہے۔ بی بی فرماتے ہیں یا علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا، یا علی مجھے میرے پرانے قمیض ہی میں غسل دینا، یا علی مجھے جب کفن پہناؤ تو میرا یہ پرانا قمیض میرے جسم پہ رہنے دینا، یا علی رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھانا، یا علی رات کی تاریکی میں مجھے دفن کرنا، یا علی میری قبر کے نشان مٹا دینا، یا علی جنہوں نے مجھے دکھ پہنچائے ہیں ان کو میرے مرنے کی خبر نہ دینا، ان کو میرے جنازے میں شرکت کی خبر نہ دینا۔ اب عزیزو ذرا سوچئے، کبھی کبھی میں غور کرتا ہوں بی بی آپ نے علی جیسے شوہر کو یہ رات کو غسل کی کیوں وصیت کی؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ بی بی اپنی موت چھپانا چاہتی تھی، اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جناب سیدہ کو معلوم تھا کہ میرے بعد علی کتنا مظلوم ہوگا، لہذا علی سے اپنے دکھ چھپانا چاہتی تھی، اور یہی وجہ ہے جب رات کی تاریکی میں اس قمیض کے اندر سے علی نے غسل دینا شروع کیا تو جناب اسماء کہتی ہیں ایک وقت تک علی اپنے بچوں کو کہہ رہے تھے بیچو آہستہ آہستہ رو، لیکن ایک دفعہ غسل دیتے دیتے علی کی چیخ بلند ہوئی، اور ابھی تک جو علی چپ کرا رہے تھے بلند آواز سے روتے روتے دیوار کا سہارا لیا اور دیوار کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اسماء کہتی ہے میں نے پوچھا یا علی یہ کیا ہوا، اب کیوں اتنی آواز سے رو رہے ہو؟ تو فرماتے ہیں اسماء زہرا کی نئی مظلومیت میرے سامنے ہے، زہرا نے اپنے پہلو کا زخم مجھ علی سے بھی پوشیدہ رکھا۔ بس عزیزو یہ ایک وصیت ہے، اور جب آدھی رات ڈھلی تو اب جناب امیر نے اپنے بچوں کا نام لے لے کے جناب امیر فرماتے ہیں حلم حلم الیہ یا زینب و یا ام کلثوم و یا فضت و یا حسن و یا حسین، اے میرے بچوں، یہاں پہلے نام جناب زینب کا لیا، زینب ام کلثوم، فضا و حسن
हसनैन आओ, अपनी माँ से आखिरी विदा कर लो, इसलिए कि फिर क़यामत को मुलाकातें होंगी। तमाम उलमा ने यहाँ आखिरी मुलाकात बयान की है। हन्नत व अन्नत व मद्दत यदाहा, जब बच्चे जनाबे ज़हरा मर्ज़िया के कफन वाले जिस्म के करीब आए तो बंद कफन टूटे और जनाबे ज़हरा ने अपने हाथ आगे बढ़ाए, अपने बच्चों को सीने से लगाया और माँ ने बच्चों पे और बच्चों ने माँ पे रोना शुरू किया। हालत क्या थी कि निदाए आसमानी बुलंद हुई, या अली इन बच्चों को माँ से अलग करो, इसलिए कि इनके रोने की आवाज सुन के मलाइका आसमान भी गिरिया कर रहे हैं। बस अजीजों, ये गिरिया बच्चों का, और आखिरी गिरिया किसका? वो गिरिया है अली का, जो नहजुल बलागा के खुतबा नंबर 200 में मौजूद है। जनाब अमीर फरमाते हैं, जब जनाब ज़हरा को दफन करने के लिए कब्र के हवाले करने लगे, अली का गिरिया बुलंद हुआ और रो के कहा, या रसूल अल्लाह कद इस्तुरजिअतिल वदिया, या रसूल अल्लाह मुझसे अमानत पलटा ली गई है। अल्लामा मजलसी कहते हैं, ये लफ्ज़ वदिया और अमानत पैगंबर अकरम ने अली और बतूल की शादी के वक्त इस्तेमाल की थी। शादी की पहली रात पैगंबर अकरम ने ज़हरा मर्ज़िया का हाथ थामा, अली के हाथ में दिया और जनाब पैगंबर ने रो के कहा, अबुल हसन या अली, ये मेरी अमानत है आपके पास। अब 9 साल के बाद अली जब ज़हरा मर्ज़िया को कब्र में उतार रहे हैं तो कह रहे हैं, कद इस्तुरजिअतिल वदियत या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह अमानत पलटाई जा रही है। ए अली जैसा अमीन, आप तो अमानत रसूल के मुहाफिज थे। यकीनन अली की निगाहों में वो मंजर होगा जब अली के हाथ में ज़हरा का हाथ रसूल ने दिया था और कहा था, या अली ये अमानत है। अब अली जब अमानत पलटा रहे थे तो अली की निगाहों में ये होगा कि या रसूल अल्लाह, जब आपने अमानत दी थी तो ज़हरा के हाथों का रंग और था। या रसूल अल्लाह, जब आपने अमानत मेरे सपुर्द की थी तो उसके पहलू जख्मी नहीं थे, उनके बाजू वरम शुदा नहीं थे, मगर या रसूल अल्लाह तेरी बेटी के साथ क्या हुआ, अपनी बेटी से पूछ लेना। अली मजबूर थे, ज़हरा मजलूम थी। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लबिन यन्क़लिबून।